Good evening, friends. Welcome to the Garbography Season 2. So, as you know, આપણે ગરબાને મેડિકલ સાથે કનેક્ટ કરી રહ્યા છે. આપણી સાથે ઘણા બધા ડોક્ટર્સ લાઈવ આવી ચૂક્યા છે. જ્યારે આજે આપણો ટોપિક છે ગરબા વિથ મેન્ટલ હેલ્થ, કે ગરબા આપણા લાઈફમાં સાયકોલોજીકલી શું ઇફેક્ટ કરે છે. સો એના માટે આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે મિસ જાનવી શેખના. She is a clinical psychologist and she is working with Dr. Mukul Choksi at Angad Clinic since last 8 years. She's involved with us for the research and all with Garba. So we'll discuss about the Garba and mental health with Ms. Janvi Shekhna. She is online over here. I would like to invite her. આપણા વચ્ચે આવી ગયા છે. સો એમને હું ઇન્વાઇટ કરીશ આપણા સેશનમાં જોઈન થવા માટે. વેલકમ મિસ જાનવી શેખના. કેમ છો તમે? Good. Thank you. Good evening, all. Good evening, ma'am. So thank you very much for joining us and thank you very much for giving this informative session to our viewers about the Garba and mental health. So, Yes. ma'am, before we start this session, I would like to say something कि आपको हम जैसे कई लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हम लोग हिंदी में बात करेंगे क्योंकि इसको हम ग्लोबली इसको प्रमोट कर पाए, नेशनल लेवल प्रमोट कर पाए अपने थॉट्स को. So we'll talk in Hindi and English. So Sure. first of all, would like to say कि आपको अपने बारे में कुछ बताना है. आपका गरबा के साथ कुछ टर्म्स है, आप गरबा खेलते हो. So kindly explain our viewers कि आप गरबा के बारे में क्या बताना चाहोगे. Yeah. Hi. I definitely would like to say कि Garba I love since childhood. I've been playing Garba since childhood, and Navratri is one of my favorite festivals. Okay. And when I came to know about your Garba, आपका concept जब मैंने सुना, I was really interested that this is something unique, something new. So why not try it? So Thank you very the much, ma'am. workshops, yes, the workshops you conducted on Yog Garba was really fun. बहुत सीखने मिला. It was really unique and had a great experience. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. So, friends, let's start our today's topic with Ms. Janvi Shekhna. कि आज के दिन में गरबा बंदे के दिमाग पे क्या क्या असर कर सकता है या करता है. सो मैम, आज के दिन का पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपके हिसाब से गरबा जो खेल रहे हैं आज सूरत में या गुजरात में, कई सारी गरबा क्लासेस चल रहे हैं. जैसे कोई 2 महीने कराता है, कोई 5 महीने, कोई पूरे साल भी करवाता है. तो आपके हिसाब से गरबा का मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो सकता है? प्लीज एक्सप्लेन अस अबाउट दैट. Okay. I think Garba can be considered as a relaxation technique, a healing approach which improves your overall physical, mental, and emotional well-being. Okay. And I think nowadays people are becoming more aware about the physical health and mental health. Mental health की importance definitely बढ़ रही है because our lives are becoming more fast and complex. उसके साथ stress भी बढ़ रहा है. सही Right? बात है मैम. So yes, so I think Garba can be considered as a technique to reduce your stress, manage your stress. ओके. ओके. Right? सो जैसे आप बता रहे हो कि गरबा से हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है. सो देयर आर अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से कई सारी और टेक्निक्स भी होंगे कि व्हाट द एक्टिविटी हम अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं. सो प्लीज एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स कि कौन कौन सी एक्टिविटी से हम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं. यस. स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए काफी सारी टेक्निक्स होती है, बट एज पर द इंटेंसिटी एंड द लेवल ऑफ योर स्ट्रेस डिफरेंट टेक्निक्स आर यूजफुल. लाइक इफ योर स्ट्रेस इज मिनिमम या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है तो वो आप घर से ही मैनेज कर सकते हैं. ओके. Like you can pursue some hobbies like reading, writing, gardening, cooking, कोई creative activity, art, painting, जो घर से पॉसिबल है आप खुद कर सकते हैं.
Okay. Also like physical exercises like walking, jogging, running, aerobics, exercise, gym, ये सब फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस. Okay. कुछ नहीं तो आप मेकओवर कराइए, ग्रूमिंग करिए, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए. इवन दैट Okay. इज अ गुड स्ट्रेस बस्टर. यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, Okay. राइट? Okay. हाँ जी, हाँ जी. देन म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, वो सब है. यू डेफिनेटली फील गुड आफ्टर ऑल दैट, राइट? Mm-hmm. Yeah. एंड और एल्स किसी से बात करके, फीलिंग शेयर करके, मीटिंग somebody, going for Mm-hmm. dinners, Mm-hmm. cafes, parties, social functions, probably basically socially थोड़ा एक्टिव होके you can feel light and उससे थोड़ा स्ट्रेस कम हो सकता है, Okay. राइट? हाँ एंड जी. इवन वी हैव सीन के किसी किसी को अकेलेपन से, लाइक आइसोलेशन एंड स्टेइंग अलोन, कैन हेल्प देम टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस. ओके, सो हर एक लोगों की अलग अलग डेफिनेटली. तरीके से स्ट्रेस का हम यस. टेक्निक यूज करके स्ट्रेस दूर कर सकते हैं. ओके Yes, फाइन. yes. ओके And फाइन फाइन. and these are the things which are easily available to you and possible because हम्म. these are handy things which you can do in your everyday lives without any help, ओके. ओके. right? सो और हाँ, हाँ जी, yeah, please. प्लीज कंटिन्यू मैम. स्ट्रेस अगर लॉन्ग टर्म होता है, हाँ थोड़ा जी. इंटेंस होता है, उसके वजह से इफ योर वर्क इज अफेक्टेड, योर हम्म. प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड, साथ में थोड़े हम्म. फिजिकल सिम्टम्स होना, लाइक नींद नहीं आनी, भूख नहीं लगनी, मूड ठीक हाँ नहीं जी. रहना, किसी से हाँ बात जी. करने का मन नहीं करना, ओके. इरिटेबिलिटी होना, हम्म. ठीक है, कभी कभी ज्यादा नींद आना, ज्यादा भूख लगना, ओके. फिजिकल सिम्टम्स होना, बॉडी एक्स होना, अलग अलग, स्टमक एक, हेड एक, ये सब हम्म. चीजें जो हम खुद मैनेज नहीं कर सकते हैं, वी नीड somebody's help, ओके. right? हाँ So जी. for this level of stress, योग, प्राणायाम, meditation, सूर्य हम्म. नमस्कार, mindfulness, relaxation, कोई भी ओके. spiritual activities is effective. ओके. एंड मेजोरिटी लोगों को स्ट्रेस कोई सिचुएशन या कोई इवेंट की वजह से होता है, right? ओके. So these हम्म. these type of stress can be managed by themselves or little help, as we just discussed earlier. ओके. सो मैम, अगर मैं आपको ये पूछूं कि व्हाट कैन बी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को कि स्ट्रेस, अगर मैं स्ट्रेस में हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आई एम इन स्ट्रेस? नहीं, ये जो आगे मैंने थोड़े सिम्टम्स बताए ना, जैसे हाँ यू जी. डोंट फील गुड, कुछ जो नॉर्मल आप होते हैं और उससे आपको कुछ अलग लग रहा है, आप में चेंजेस, ओके. एंड जो सिम्टम्स बताए, नींद नींद के सिम्टम्स, एपेटाइट के हाँ जी. सिम्टम्स, फिजिकल हाँ सिम्टम्स, जी. आपकी हाँ जी. प्रोडक्टिविटी, वो चेंजेस आप में आप खुद देख सकते हैं. ओके. टेंशन होना, ओके. विचार आते रहना, मूड मूड ठीक नहीं रहना, वो सब, दीज आर द इंडिकेशंस ओके फाइन मैम. ऑफ, सो कैन यू प्लीज या. एक्सप्लेन कि जैसे डांस का ट्रेंड आज के ज़माने में बढ़ रहा है, हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए या एंजॉयमेंट के लिए अलग अलग डांस क्लास ज्वाइन करते हैं, फिटनेस के लिए जुम्बा एरोबिक्स ज्वाइन करते हैं. सो हाउ कैन यू कोरिलेट दैट थिंग विथ स्ट्रेस और एनी अदर एंजाइटी और समथिंग लाइक दैट? या सी, स्ट्रेस की सिवियरिटी जब ज्यादा होती है, लाइक व्हेन यू हैव एंजाइटी सिम्टम्स विद इट, लाइक घबराहट होना, अनइजीनेस, रेस्टलेसनेस फील करना, पैनिक होना, डर लगना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना, बिल्कुल काम करने की क्षमता नहीं होना, कंसंट्रेशन लेवल अफेक्ट होता है, ओके. ये सब जब ज्यादा हो जाता है, देन यू कंसल्ट अ काउंसलर, अ साइकोथेरेपिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट. And ओके. for these symptoms, there are alternative therapies, uh, such as dance therapy, music therapy, drama therapy, ओके. cognitive behavior therapy, play therapy, art therapy, or many more. Right? ओके. And all these therapies has a combination of breathing techniques, muscle movements, art and craft, ओके. creativity, सोशल एक्टिविटी एंड बॉडी मूवमेंट्स. ये सारी थेरेपीज में ये सब कुछ कॉम्बिनेशन होता है.
ओके एंड फाइन। इसमें से कई चीजें आई हैव सीन के डांस, म्यूजिक, मसल एंड बॉडी मूवमेंट, क्रिएटिविटी, सोशल एक्टिविटी, रिदम, ये सब गरबा में भी वी हैव सीन, या so it's directly and directly राइट? connected in Garba, as you are saying, right? यस यस यस। So specific अगर आज के टॉपिक को अपने गरबा के साथ कनेक्ट करेंगे कि हाउ द गरबा इज कनेक्टेड विथ मेंटल हेल्थ, या फिर कैसे कैसे लोगों को ये कहाँ कहाँ पे काम लग सकता है, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दैट कि गरबा करने वाले बंदे को कौन कौन सी चीज में से छुटकारा मिल सकता है, वो अपने आप को अच्छा फील कर सकता है। Yeah, definitely. First of all, I would like to say कि गरबा is a group activity, right? ग्रुप में यस, खेला जाता है। हाँ जी हाँ जी, इट इज देयर इन इज अ नो सर्क अदर इट इज ऑप्शन। या वो एक सर्कल फॉर्मेशन में किए जाते हैं, राइट? हाँ एंड जी सो हाँ जी। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोशल एक्टिविटी, प्लस उसमें सर्कल फॉर्मेशन में है सो दैट यू कैन सी ईच अदर, आई या कांटेक्ट बनता है, हाँ जी। एंड दिस कैन इम्प्रूव योर सोशल लाइफ। आप नए ओके रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं, नया ओके का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बन सकता है। ओके, You basically you have an activity that you can do in a group together, बराबर है। so it works as a group and a social therapy as well. हम्म अगर आप लोनली फील करते हो, यू डोंट हैव एनी अदर फ्रेंड्स, या हम्म, कोई फैमिली बड़ा नहीं है, तो इफ यू बी अ पार्ट ऑफ अ गरबा ग्रुप और गरबा क्लास, तो हाँ यू जी हैव अ न्यू ग्रुप विथ यू हाँ जी। सो एक एंड यू नए कैन नए मेक न्यू फ्रेंड्स फ्रेंड्स। नए फ्रेंड्स बनते हैं, एंड यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद यस देम, एंड इट कैन बी अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर द पीपल, मतलब हमारे साथ जो भी यस। ज्वाइन होते हैं, दे कैन फील हम्म हैप्पीनेस। सो कई बार हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो गरबा खेलने के लिए हमारे क्लास में आते हैं, वो गरबा हम्म के लिए हम लोग गुजराती है, वो लोग कई टाइम से वेट करते हैं, लाइक बिफोर 4-5 months वी स्टार्ट प्लेइंग एंड प्रैक्टिसिंग द गरबा, राइट? हम्म सो हम्म। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम कि भाई उस टाइम पे अगर किसी को साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस गरबा क्लासेस से क्योर हो सकते हैं, ऐसे कोई चांसेस है कि नहीं है? नहीं, मैं अगेन दैट वुड डिपेंड कि वो किस टाइप का स्ट्रेस है, क्या हम्म, लेवल का है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, ओके, कोई ऐसा इवेंट या सिचुएशन उनकी लाइफ में बनी है कि नहीं, बहुत सारे हम्म, फैक्टर्स है। हम्म, स्ट्रेस है कि नहीं ऐसा डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते कहीं पे भी, ओके राइट? ओके, द हाँ जी, पर्सन हिमसेल्फ इफ एक्सपीरियंसेस, तो उनको डायरेक्टली किसी की हेल्प मांगनी चाहिए, खुद अकेले सफर नहीं करना चाहिए। टेक ओके, हेल्प फ्रॉम एनीबडी, जरूरी नहीं है प्रोफेशनल हेल्प, बट फ्रॉम एनीबडी, फ्रेंड्स, फैमिली, एनीबडी। हाँ जी बट हाँ जी इफ मिनिमम लेवल का है, जैसे मैंने आगे बताया, तो हाँ जी, डेफिनेटली इट कैन हेल्प देम थोड़ा वो रिलैक्स, एटलीस्ट उतने टाइम पीरियड के लिए, उनको थोड़ा रिलैक्स फील हो, फ्रेश फील हो, तो व्हाई हाँ जी नॉट, जितना उनको हाँ जी ठीक लग सके हाँ देर जी। के लिए। सो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। जब मैं गरबा के ऊपर रिसर्च के अंदर अंदर उतरा हुआ हूं, तो हर एक परिस्थिति को आई वुड ट्राई टू को रिलेट। तो जैसे मैंने पिछले वक्त नीलम पांचाल मैम जो है हल्लारो मूवी के जो एक्ट्रेस थे, उनसे मैंने इंटरव्यूज किया, उनसे मैंने बात की थी। सो मैंने हम्म उनको पूछा था कि भाई हाउ गरबा इज कोरिलेट विथ यू, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे लाइफ की हर एक सिचुएशन को आई एम रिकनेक्टिंग विद गरबा। कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो भी मैं गरबा करती हूँ, मुझे स्ट्रेस आ रहा है तो भी मैं गरबा करती हूँ, मतलब उनको गरबा के साथ उतना लगाव है कि वो उनके थ्रू हर एक एक्सप्रेशन को वो रिलेट करते हैं। सो व्हाट इज द वाह। एक्चुअल सिचुएशन विथ हर, लाइक वो uh, उन्होंने मुझे बता तो दिया, मैंने हाँ हाँ भी कर दिया, बट आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग हर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आई वाज नॉट गेटिंग हर। सो इफ यू कैन एक्सप्लेन द ओके। सिचुएशन। या गरबा को मैंने स्टार्टिंग में इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक बोला, हाँ जी बिकॉज जनरली गरबा हाफ एन आवर के लिए कंटिन्यूस होती है, लाइक हाँ उसकी जी हाँ जी कसेट या हाँ म्यूजिक
कंटिन्यूस हाँ होता जी, है फॉर हाफ एन आवर मिनिमम आई थिंक. हाँ जी. And so for half an hour you're continuously doing garba, and once that Mm-hmm. half an hour is finished, you feel a meditative experience, because Yeah. you're engrossed in the music for that period of time. Mm-hmm. म्यूजिक में हम खो जाते हैं उस टाइम पे, एंड एट हाँ दैट जी. टाइम यू आर वन विथ योर सेल्फ. आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं, यू आर जस्ट विथ योर सेल्फ एट दैट टाइम. सो Hmm. उस टाइम पे एक मेडिटेटिव फीलिंग होती है. Hmm. आपकी सेल्फ अवेयरनेस उससे बढ़ती है थोड़ी, Okay. एंड सेल्फ एस्टीम एनहांस होती है. यू Mm-hmm. फील गुड अबाउट योर सेल्फ. Okay. एंड जो हम म्यूजिक के बीट्स पे अपना ध्यान फोकस रखते हैं, Hmm. तो उससे अपना कंसंट्रेशन लेवल, अटेंशन स्पैन भी इम्प्रूव होता है. Okay. एंड अल्टीमेटली ये सब चीजें जो पॉजिटिविटी हो रही है, उससे Hmm. वी आर एबल टू फ्री आवर माइंड एंड Hmm. डेवलप द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड थिंक Mm-hmm. पॉजिटिव. And Okay. once we have a free and clear mind and a positive mind, our stress Mm-hmm. reduces with it. Okay. Okay. Fine. 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 So viewers, hope you are getting Yeah. very nice information from Ms. Janvi Shetna. If please continue if you want to say something. Yeah. So गरबा की जो दूसरी हमने साइंटिफिक, वी हैड डिस्कस अर्लियर दैट गरबा में मैक्सिमम यूज ऑफ क्लैप होता है. अपार्ट हाँ फ्रॉम जी. अदर डांस फॉर्म्स, गरबा हाँ जी. एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें क्लैपिंग का इम्पोर्टेंस बहुत है. हाँ So जी. it has its own benefits. Clapping has its own benefits. Uh, Okay. it activates the hand receptors, Mm-hmm. which in turn activates a portion of your brain. And receptors Okay. activate होते हैं, उससे आपके brain के थोड़ा portion activate होता है, हाँ and जी. which leads to the activation of other body systems. Body Okay. के other systems उससे activate होते हैं, बराबर. and which is associated with the healing of those body systems. So basically अपनी Okay. healing capacity बढ़ती है उससे. Okay. So Okay. Okay. clapping stimulates blood circulation in our Mm-hmm. body, and which is the lifeline of our body. Blood circulation is very important, and it Mm-hmm. helps in everything in our body, Okay. 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 right? Fine, 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 ma'am. Thank you very much, ma'am. We are going deep into the Garba from the psychological side. So, viewers, if you want to ask any question, we are welcome to you. आपको कुछ भी पूछना है तो you can ask in comment. Till that, we are continuing our sessions. Ma'am, my next question is, आपने मुझे बताया था कि गरबा करने से टेंशन भी बढ़ता है. तो what is the reason behind that? How one can improve their concentration with Garba Uh, specifically? hmm, hmm, hmm. See, brain में there are emotional areas in Mm-hmm. hypothalamus, and Okay. hypothalamus is situated deep down between both our hemispheres, and Okay. different emotional areas are connected in this hypothalamus. Okay. Okay, और ब्रेन की जो नर्व्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, Mm-hmm. और दो नर्व्स के बीच में देयर इज अ स्पेस which is called synapse. So Mukul sir और is ये there. Can you please hold yourself for the few minutes? We have Mukul sir great, yes, online. He is yes. going to come and introduce the Garba with health, mental health. So I would like to invite Dr. Mukul Choksi. Sir, you are very Hello. welcome to the Garba season 2. Here we are discussing about the Garba's relation with mental health. So can you please give some reviews from you? क्या आप कुछ बता पाएंगे कि how Garba can be the correlated with mental health? Thank you very much, Anish bhai. In fact, I had been to your session, kind of an inaugural session when you demonstrated Yeah, how yeah, it was a Yog you Garba. are. Yes, your Garba, yeah. So, Yeah. and in fact, I had a lot of information from Janvi because for almost Okay. last 1 year, she is into it, and Yes, sir. she is working hard to find out the principles and to find out how this can be helpful. In fact, Yes, sir. this is probably a first kind of a scientific research you are carrying out about this particular type of exercise
Yes, sir. Psychologically, we have seen a number of people Mm-hmm. who are throughout the year they remain disturbed, but during Norta they are Haji. cured. Yes, sir. Uh, Yes, sir. if they are if they are instructed to keep awake for the whole night, they can't. But during Navratri season, they are. Haji. So it was Yes, a sir. mysterious thing that how they derive energy during just those 10 days. Yes, And sir. I think Yes, answer you are in the process of finding out the answer that yes, how sir. they Yes, are sir. deriving the energy. Yes, sir. Yes, Janvi sir. will elaborate everything, but I'm very Yes, sir. happy that she is affiliated with your project, and Yes, sir. Yes, sir. I convey my best wishes for your Thank project you that you very much, find sir. out you come out with a very positive results. And Thank you very much. as Garba is not popular amongst only Gujarati people, but a lot of Yes. non-Gujarati people are also attracted when we visit Mumbai during Navratri Yeah. incidentally. A lot Yes, of sir. Yes, non-Gujarati sir. people also, the way we are interested in Ganesh Utsav, they are interested in Haji. Navratri. So I think Navratri. Yes, yes. it's not only our only Gujaratis privilege, Haji. and Haji. Garba especially is affiliated to and associated to bhakti, exercise, Yes. mental strength, Yes, sir. Yes, and sir. the whole public celebration. So it's a amalgamation of lot of energetic things. It's not only only religion. It's not only physical exercise. It's Yes, a sir. accumulation of lot of things. So Yeah. I request Janvi to continue, and I once again convey my all the best to your venture. Thank you Thank very you, much, sir. Thank you thank very you much very for much. joining us Thank in you. the Thank you. session. Yeah. Thank you very Bye much, bye. sir. Thank you. Bye. It was our pleasure to have you on our platform. Thank you. Please continue, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. It was our pleasure to have Dr. Mukul Choksi on our platform for giving his valuable time and such a nice information in a very short time. So let's continue our session with Yes. Ms. Janvi Shetna. Please, you can continue with your topic. Yes. So I was talking about the emotional areas in the brain. Mhm. So ब्रेन्स की नर्व्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है एंड बिटवीन टू नर्व्स देयर इज अ स्पेस विच इज कॉल्ड Mhm. सिनेप्स और ये Okay. सिनेप्स के अंदर अंदर से ही सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमिटर्स की सिक्रेशन होती है एंड दिस सिक्रेशन अल्टीमेटली जनरेट्स इम्पल्स जो हमें Mhm. इमोशंस का एहसास दिलाती है लाइक एंगर Okay. हैप्पीनेस मोटिवेशन कंसंट्रेशन Okay. एक्सेट्रा Okay. ये है Okay. एक Okay. सिस्टम Okay. दूसरे सिस्टम है जो है एड्रिनल ग्लैंड्स में जहाँ पे Mhm. एड्रिनलिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल सीक्रेट होते हैं एंड जो Okay. अब हमारी एक्टिविटी हमारी कोई भी एक्टिविटी और मूड के लिए काम करते हैं Okay. सो ये सब न्यूरोट्रांसमिटर्स एक्टिव होते हैं जब तो ये हमारे ये केमिकल्स जनरेट होते हैं एंड इससे हमारे Okay. मूड में इमोशंस में ये सब चीजों में डिफरेंस आता है उसके वजह से Okay. 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 So, सो वो व्हेन वी आर बदलाव से स्ट्रेस्ड हम्म यस व्हेन प्लीज वी आर कंटिन्यू स्ट्रेस्ड ये जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब ये न्यूरोट्रांसमिटर्स की जनरेशन कम हो जाती है एंड उसके वजह से हम ये सारे फिजिकल सिम्टम्स सारे मेंटल सिम्टम्स फील करते हैं ओके फाइन so सो activation of these neurotransmitters is important ओके फाइन फाइन सो मैम वी हैव सम yeah मोर क्वेश्चन कि डज गरबा हेल्प्स एनी एज पर्सन टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस मतलब किसी भी एज वाले बंदे को क्या स्ट्रेस दूर करने में गरबा हेल्प कर सकता है yes definitely stress can be done by anybody छोटे बड़े any age group सर ने जैसे बोला कोई भी कल्चर से बिलोंग करते हो anybody can do गरबा दैट and it is गरबा easy to learn as well या it is easy to या learn और वो गरबा सीखने की भी एक प्लेजर है उसमें भी because you feel that you have achieved something that you know you have learned something हाँ right
कई लोग आते हैं हमारे पास, सर ये स्टेप्स करना है, ये स्टेप्स करना है, एंड व्हेन दे लर्न द स्टेप दे आर फीलिंग लाइक दे आर टू मच हैप्पी कि उसने कुछ अचीव कर लिया लाइफ के अंदर। यस कई लोग ऐसे होते हैं यस जिन्होंने पूरे लाइफ में कभी डांस नहीं किया हो, एंड डायरेक्टली दे आर इन्वॉल्विंग इन गरबा कि भाई ये नवरात्रि का सीजन है, 9 दिन तो मेरे को खेलना ही है, तो उसके लिए तो मैं गरबा सीख के ही रहूंगी या गरबा सीख के ही रहूंगा। सो यस अमित सर, यस एज यू आर आस्किंग और मैम ने बताया कि एनी एज पर्सन कैन रिड्यूस देयर स्ट्रेस विद गरबा, क्योंकि बेसिकली क्या है सर, जो हम लोग जो मैं रिसर्च करता हूँ, जो जानता हूँ कि भाई गरबा का जो म्यूजिक है वो पवित्र डिवाइन म्यूजिक है। उसके अंदर डांस की मूवमेंट आती है, आप क्लैप्स करते हो, और देर इज नो रिस्ट्रिक्शन और देर इज नो एनी रूल्स टू डू क्लैप। लाइक मैंने कई 80 ईयर के उम्र वाले दादी जी को भी देखा है, शी इज प्लेइंग गरबा विथ हिज इमोशन, विथ हिज फीलिंग ऑफ प्रार्थना एंड ऑल। तो वो टाइम पे उनके अंदर कहाँ से एनर्जी आती है, वी कैन नॉट फाइंड इट आउट। पूरे साल वो शायद घर में बैठे रहते होंगे, बहुत काम भी नहीं करते होंगे, पर ड्यूरिंग द नवरात्रि वो अगर घर पे बैठे हैं तो स्पेशली नीचे उतरेंगे और वो गरबा करेंगे। तो यस, इट्स डेफिनेटली हेल्प व्हेन यू आर प्लेइंग गरबा इन एनी एज अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड ऑल, राइट मैम? यस यस सो यस मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, नॉट ओनली टू द ओल्ड एज पर्सन, पर मेरे जैसा बंदा भी अगर कोई है तो उनका भी स्ट्रेस रिलीव होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस ये जो एग्जांपल है वो हर एक के घर में मैम बनता होगा। जस्ट यू हैव टू टेल अस द रीजन बिहाइंड इट कि भाई वो कैसे बना। जैसे एक दिन शाम को मेरी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, बोले कि आप ये करते हो, मैंने बोला तू भी ये करती है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, इतने साल से घर में आई है, ये वो हमारा थोड़ा बहुत वो हो गया, बोला चाली हो गया, और हम लोग एक दूसरे के साथ बात करने की हम लोगों ने बंद कर दी। वो शाम हम लोगों ने बात नहीं की, पूरी रात हम लोगों ने बात नहीं की, एक दूसरे से अपोजिट होके सो गए, एंड देयर वाज अ कंटिन्यूअस समथिंग वाज गोइंग ऑन। हमारे दिमाग में कंटिन्यूअस चल रहा था, ये अपने आप को क्या समझती है, मैं इतना सब कुछ करता हूँ उसके लिए और मेरे लिए इतना भी नहीं समझ सकती, वो सब कुछ दिमाग में चल रहा था। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई हैड ए गरबा सेशन में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब दैट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी, भाई मुझे तो गरबा करवाने जाना ही है, मुझे तो मेरा रिसर्च करना ही है एंड ऑल। सो आई वेंट फॉर द गरबा सेशन। मैं सेशन के लिए गया मैम, वहां पे 1 घंटे मैंने गरबा कंडक्ट किया, सब लोगों ने मेरे साथ एंजॉय किया। बट आई डोंट नो व्हाट इज द मैजिक हैपेंस के आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, जो मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा था, जो नेगेटिव बातें चल रही थी कि भाई मेरी वाइफ की ये वो फलाना दिखना, जो भी कुछ है, दैट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिविटी, और द स्ट्रेस कंप्लीटली रिलीव। आई फील कि भाई ये तो लाइफ है, हमको साथ में ही जीना है, और ये तो चलता रहेगा, लेट्स से सॉरी और लेट्स से आई लव यू, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड फॉर दैट मोमेंट आई फील रिलैक्स कि चलो भाई कोई बात नहीं। सो मैम, मेरा ये जो इंसिडेंट्स है, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसमें कौन से मैजिक ने काम किया कि भाई गरबा करने के बाद मेरा जो दिमाग में जो भी कुछ स्ट्रेस था वो कंप्लीटली रिलीव हो गया। in fact garba is also a very effective anger management technique. ओके। आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होता है, इरिटेबिलिटी रिड्यूस होती है। जैसे हाँ जी। आपने बताया कि आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा था, राइट, आफ्टर द फाइट, सो दैट वाज हाँ द जी। बिल्ड अप फ्रस्ट्रेशन, द इरिटेबिलिटी, वो सब आपका रिलीज हो गया गरबा करने से। उससे फिर ओके। थोड़ा आपका मूड ठीक हुआ, मूड अच्छे होने से नेगेटिविटी कम हुई। So ओके। it works very well as a anger management technique also, ओके। ओके मैम। ओके। right? So यस, stress तो आई reduce गॉट। हो ही रहा है, but anger भी आपका manage हो रहा है कंट्रोल इससे। मैनेज हो रहा है, मतलब इट्स कंट्रोलिंग द थिंग्स। Yes. सो हमारे व्यूअर्स में से क्वेश्चन आया है हमारे बीच में। सर हेतल मैम इज आस्किंग कि इफ एनीवन कैन गेट साउंड स्लीप, इज इट अ टाइप ऑफ स्ट्रेस? एनी सजेशंस? Okay. साउंड स्लीप नहीं आना वो स्ट्रेस का एक सिम्टम हो सकता है, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। वो आपका एक सिम्टम हो सकता है। इफ वो प्रोलॉन्ग्ड रहता है, आपको नींद की प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म से है, तो यू कैन कंसल्ट समबडी कि क्या रीजन हो सकता है।
and एनी फिजिकल एक्टिविटी बीट गरबा और एनीथिंग से अगर आप थकान आपको होती है तो आपको शायद नींद इंड्यूस हो सकती है, बट इवन हाँ इफ जी, इट डजंट वर्क देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट डॉक्टर और समबडी, बिकॉज अगर वो ओके, लॉन्ग टर्म है तो यू नीड हेल्प। ओके। सो होप होटल हेतल मैम आपको आंसर मिल गया है हमारे मैम के पास। फिर भी इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग पर्सनली यू कैन गो थ्रू अवर वेबसाइट, इट इज www.isgd.in, जहाँ पे हमारे सारे डॉक्टर्स के डिटेल्स दिए गए हैं, आप डायरेक्टली उनसे कंसल्ट भी कर सकते हो। सो लेट्स गो विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक। मैम मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में कई स्टूडेंट्स में कॉलेज में कई स्टूडेंट्स जो होते हैं ड्यू टू सम प्रेशर और स्ट्रेस दे आर टेकिंग अ रॉन्ग स्टेप्स लाइक टुवर्ड्स अ सुसाइड एंड ऑल। So do you think so यस। Garba can be helpful to them, or any other dance movement therapy or Garba therapy can be helpful to them or not? Yeah, definitely it will be helpful. I think Garba as a therapeutic activity should be included in educational institutions, corporate offices, special schools, in fact even in old age homes, because जैसे मैंने बताया बड़े छोटे सब ये कर सकते हैं, तो ओल्ड हाँ एज जी। होम्स में इंक्लूड कर सकते हैं एज एक्टिविटी, ऑल्सो इन डी एडिक्शन सेंटर्स, बिकॉज डी ओके, एडिक्शन सेंटर्स में हम जनरली उनको योग प्राणायाम रिलैक्सेशन ये सब कराते ही है, तो करवाते व्हाई हो, नॉट हाँ जी। गरबा एज वेल, क्योंकि उसको उनको एक फन एक्टिविटी भी मिल जाएगी, प्लस या इट फाइन। वर्क्स एज अ रिलैक्सेशन टेक्निक। तो डेफिनेटली स्लोली आई थिंक गरबा शुड बी इंक्लूडेड इन ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एज अ स्ट्रेस बस्टर, एज अ रिलैक्सेशन टेक्निक। ओके एंड व्हेन फाइन। गरबा इज इट इज आर इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है, इट इज कल्चरली एक्सेप्टेड, और जैसे मैंने बताया इज इजी टू लर्न, देन जब हम जुम्बा एरोबिक्स कर रहे हैं तो व्हाई नॉट गरबा एज वेल, सही बात है, सही बात राइट। है। या so basically, as you said, we are trying our best from the IAGD. We have conducted some workshop in SPNIT with the students in some hospitals in Bhuj, and we are trying to reach in different with a different aspect with a different people. कि भाई जहाँ जहाँ पे हम लोग गरबा के मैक्सिमम फायदे बता सके और गरबा को अपने हेल्थ के साथ कोरिलेट कर सके। आज के जमाने में पीपल आर टेकिंग इट जस्ट फॉर फन एंड ऑल, बट हमने भगवान की कृपा से थोड़ा विजन डाइवर्ट किया जिसमें आप भी हमारे साथ इन्वॉल्व है कि भाई गरबा को एक अलग तरीके से हम लोग दुनिया के सामने रख पाए। सो देयर इज वन क्वेश्चन, बट does garba helps reduce and regulate weight management? So actually this is a psychological session, but I would like to explain the basic thing, Amit sir, कि yes, definitely garba helps you in reduce and regulate the weight management, but you have to go through the systematic way. It's like in my academy we are doing warm up, stretching, cool down and all, as well as we have consulted some dietitian with us who can diagnose you, who can guide you what the diet should be taken by you during this particular activity. So definitely it will help. पर जैसे आपने कहीं पे भी गरबा के क्लास ज्वाइन कर लिए, गरबा क्लास खाने के बाद खेलने के बाद अगर बाहर जाके आप बहुत सारा खाना खाते हो और फिर लाइफ को मजे से जीते हो, डेट विल नॉट वर्क। बट अगर आपको एक्चुअली करना है तो यू कैन गो थ्रू सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड सम in a systematic way. So so let's go with the next question, मैम। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग गरबा थेरेपी का यूज करते हैं, सो वी आर डूइंग दैट गरबा थेरेपी विद सम स्पेशल चाइल्ड्स जो मेंटली डिसेबल होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम से साथ जुड़े हुए होते हैं। उन लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक श्रीनंदन स्कूल करके है जहाँ पे हम लोगों ने गरबा थेरेपी उनके बच्चों पे अप्लाई किया। सो करीबन 3 महीने हम लोगों ने एवरी डे एवरी वीक 2 days, मतलब एक घंटे हमने गरबा थेरेपी उनके ऊपर अप्लाई की, एंड दे हैव फाइंड अ वेरी गुड रिजल्ट। उनकी जो चीज को समझने की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। ऐसा हमने वहाँ के मैम ने हमको रिव्यूज किया, उनके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमको दिखाए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि भाई गरबा उन बच्चों के साथ कैसे काम कर रहा होगा या क्या काम कर रहा होगा?
दैट्स रियली गुड कि आपने ये सेशंस कंडक्ट किए, बिकॉज स्पेशल किड्स आर रियली स्पेशल, उनको जितनी भी हेल्प मिले वो अच्छा है। हाँ एंड जी। आई थिंक उनकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हुई होगी आपके सेशंस के हम्म। बाद, हम्म। मेमोरी इम्प्रूव हुई होगी, ओके। एंड जो जो वो स्टक होते हैं जिस चीज पे, आई थिंक उससे उनका थोड़ा आगे बढ़े होंगे, हाँ जी। बिकॉज स्पेशल किड्स में होता है कि वो लोग भले दूसरी सब चीजों में उनको परेशानियां होती है, बट हम्म। समवेयर वन और द अदर स्किल्स दे डेफिनेटली हैव। तो वो हाँ स्किल जी। एनहेंस करने में, वो स्किल ढूंढने में ये गरबा आई थिंक मस्ट हैव बीन इफेक्टिव, हाँ जी। बिकॉज उसमें मैं जैसे बोलता है कि यू आर वन विथ योर सेल्फ, उस टाइम पे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, तो हम्म। दैट मस्ट हैव बीन रियली हेल्पफुल फॉर देम। हाँ जी। और उसमें वो लोग एक ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनकी बॉन्डिंग होती है, हम्म। साथ में एक सिंक्रोनाइज्ड वे में गरबा होता है, कोऑर्डिनेशन होता है गरबा में, तो उनकी वो हाँ जी। मूवमेंट्स और वो सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रही है। हाँ जी। तो वो सब डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ होगा। आई एम रियली ग्लैड के यू आर एबल टू हेल्प दोज किड्स। दे वर एंजॉयिंग इवन विद द एक्टिविटी, उन लोगों को बहुत मजा आ रहा था। वी वर हैप्पी विद दैट एक्टिविटी। वी वर नॉट फोकसिंग एट व्हाट द बेनिफिट दे विल गेट, बट स्लोली स्लोली यस। वहाँ के जो मैम थे उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने जो उनके ऊपर ध्यान रखा, तो बहुत सारी चीजें बाहर हम्म। आई कि वो लोगों हम्म। को एक इफेक्टिव रहा था। मैम मेरा एक हम्म। क्वेश्चन ये रहेगा स्पेसिफिकली फीमेल्स को लेके कि जैसे एक मेनोपॉज का स्टेज आता है, उस टाइम पे फीमेल की साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ट्विस्टेड होती है, बहुत सारी फ्लक्चुएशन वाली होती है। सो डू यू थिंक सो कि गरबा कैन बी हेल्पफुल इन दैट सिचुएशन और नॉट? यस, वेन अगर वो उस टाइम पे स्ट्रेस में है, तो डेफिनेटली उनको गरबा हेल्पफुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। जो हमने आगे ये सब डिस्कस किया कि स्ट्रेस में कैसे गरबा इज इफेक्टिव, तो व्हाई नॉट, उनको उनके लिए भी वो इफेक्टिव रहेगा। ओके। ओके। मतलब हाँ। उनकी वो सिचुएशन में दे कैन प्ले गरबा, वो तो हमने डिस्कस किया था फिजिकल फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके, बट दैट कैन बी इफेक्टिव ऑन अ मेंटल साइड आल्सो। So there is some यस यस, question व्हाई from नॉट। Mr. Amish Mehta. He's asking, does stress leads to blood pressure, diabetes, depression, and how to regulate the same? Will Garba help in this problem? Well, this is again a physical aspect of the question. हाँ I'm जी। not the right person to answer this, ओके। बट डेफिनेटली अगर जिसको स्ट्रेस से ये सब एक लेवल ऊपर हो जाता है स्ट्रेस, तो हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी द ओनली कॉज। उसके बहुत सारे दूसरे कॉज ओके। भी साथ में होंगे। स्ट्रेस कैन बी ओके। वन ऑफ देम, ओके। 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 राइट। एंड अगर स्ट्रेस के वजह से ये सब है, तो गरबा करेंगे तो गरबा से स्ट्रेस कम होता है, तो डेफिनेटली ये सारी कंडीशंस में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बट ऑब्वियसली यू कंसल्ट योर डॉक्टर एज वेल। अमित सर, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा। अगर स्ट्रेस को छोड़ के, अगर आप ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ रहे हो, डायबिटीज के बारे में पूछ रहे हो, डिप्रेशन के बारे में पूछ रहे हो, तो वो हमने कल ही डॉक्टर चिंतन पटेल के साथ ऐसा ही सेशन किया था। यू कैन गेट सम इंफॉर्मेशन ओवर देयर कि ये सब कंडीशन के साथ अगर गरबा खेलना है तो आप कैसे खेल सकते हो, उसके बारे में हमने कल के सेशन में ही डॉक्टर चिंतन पटेल से बात की थी। एंड एज मैम सेड कि अगर स्ट्रेस का कनेक्शन है इस चीज को लेके, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प। दूसरी बात की जो प्रेशर वाला थिंग्स है, ब्लड प्रेशर वाला, डायबिटीज वाला, डिप्रेशन वाला जो थिंग्स है, उसमें सर्टेन कंडीशन के साथ आप गरबा खेल सकते हो। गरबा का मीनिंग, इट्स अ लार्ज डेफिनेशन। एक दो तीन ताली गरबा से लेके आजकल लोग जो डोरिया खेलते हैं, लोग डांडिया खेलते हैं, लोग हिंच खेलते हैं, देयर आर डिफरेंट मूव्स ऑफ गरबा। सो आपको कौन सी एज में कौन से टाइम पे क्या खेलना है, दैट कैन गाइड बाय माय डॉक्टर्स एज दे आर इनटू रिसर्च, एंड दे कैन टेल मी कि अमीश भाई को ये चीज की रिक्वायरमेंट है, आप इस चीज पे फोकस करो और आप ये करवाओ, तो उनका रिजल्ट मिल जाएगा। So it's something like that. So basic stress की जो प्रॉब्लम है, that can be definitely cured by गरबा
एज मैम सेड, बट जब फिजिकल कंडीशन की बात आती है, मेडिकल कंडीशन की जब बात आती है, तो वी हैव टू कंसल्ट डॉक्टर. कई बार ऐसा होता है कि सभी डॉक्टर्स को गरबा के बारे में मालूम नहीं होता है, क्योंकि दे आर नॉट इनटू दैट फील्ड. बट हमारी जो हमारी जो टीम है IAGD की, जिसके अंदर डॉक्टर लोग स्पेसिफिकली इसके ऊपर फोकस करके गरबा को बाइफरगेट करता है कि भाई ये बंदे को 2 ताली करवाओ, ये बंदे को 3 ताली करवाओ, इस बंदे को इस एंगल पे मूवमेंट्स करवाओ, सो दैट मे हेल्प यू. सो यू कैन गो विथ माई सेशन. जो हमने कल एक सेशन रखा था डॉक्टर चिंतन पटेल के साथ, आप एक बार उसको रिफर करोगे तो आपको उनमें से फिजिकल एस्पेक्ट से दिस मेडिकल कंडीशन के साथ गरबा करना है कि नहीं करना है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा. सो मैम, द बेसिक क्वेश्चन वाज दैट कि भाई आजकल जो टाइम चल रहा है, जो एक कोविड-19 चल रहा है, सब लोग 2 महीने से घर में बैठे थे, बहुत सारा टेंशन या कुछ था. सो कैन यू प्लीज एलेबरेट अबाउट दैट कि इस सब चीज के साथ हाउ वी कैन कनेक्ट गरबा, कि भाई बंदा क्या क्या इसमें से कर सकता है. आई थिंक यार दिस इज अ वर्ल्ड वाइड क्राइसिस. ये पैंडेमिक, ये लॉकडाउन, इससे कई लोगों को स्ट्रेस हो रहा है. पीपल आर बिकमिंग एंशियस, उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, पैनिक हो रहे हैं सब, बिकॉज देर इज इनसिक्योरिटी, होपलेसनेस है, कुछ पता नहीं है कहाँ कैसे क्या होगा. लोगों को इंसोम्निया डेवलप हो रहा है, डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, पीपल आर लूजिंग होप. So, because बच्चे घर पे है, the male members are at home, the females have to work double and put their effort, right? So, definitely people की mental health को बहुत affect हुआ है ये pandemic में. So, I would like to suggest कि consider गरबा as a family activity, and why not आप सब मिलके घर पे गरबा साथ में करें. एंड सर के योग गरबा के ऑनलाइन सेशंस आर आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन ऑन हिज फेसबुक पेज. तो एक एंटरटेनमेंट की तरह से यू कैन डू गरबा एज अ स्ट्रेस बस्टर. यू कैन डू गरबा, एक फैमिली बॉन्डिंग हो सकती है उसमें. सो वी कैन फाइट विद दिस लॉकडाउन बाय डूइंग गरबा. Yeah. So as you said, we are doing some session on our page, Yog Garba page, that as we have some programs like Yog Garba, it's a combination of yoga and Garba. We have done some session in Australia, in Canada and USA. It's an online session and people enjoyed a lot. So yes, definitely some of my students are feeling very well by doing that. आप मैम मानोगे नहीं, पर ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सबका टाइम का स्केड्यूल चेंज हो रहा था कि भाई सब घर में ही थे, रात को लेट नाइट तक जागना, सुबह लेट उठना. पर स्पेसिफिकली आई रियली थैंकफुल टू माय स्टूडेंट्स कि भाई जो लोग ने इस चीज को एहसास किया है, दे वर शार्प कमिंग ऑनलाइन बाय 7 AM. वो मेरे सेशंस को अटेंड करते थे 7 to 8, और वो अपने पूरे दिन को अच्छा बनाते. इवन इन दिस लॉकडाउन मैं तो बिलीव नहीं कर रहा था कि भाई वो लोग आएंगे. मैंने बोला 2-3 दिन ट्राई करने दो भाई, कोई नहीं आया तो फिर बंद कर दूंगा. बट इट वाज अमेजिंग रिस्पॉन्स. सब लोग, जैसे मैं सुबह में उठता हूँ तो मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ गुड मॉर्निंग, तो तुरंत ही 6:45 को रिप्लाई आने लगते हैं गुड मॉर्निंग करके. मतलब मैं समझ जाता हूँ कि ये लोग उठ गए हैं, मेरे सेशन में आ जाएंगे. सो इट वाज वेरी अमेजिंग सेशन and they enjoyed it a lot, ma'am. So viewers, if you want to ask any, thank you very much, ma'am. So if you want to ask viewers anything else to Ms. Janvi Shetna, you can ask over here in comment. As per the our topic, we have covered all the aspect. But आपको अगर कुछ पूछना है, how the Garba can be helpful, जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि I am pursuing my PhD with Garba for the stress relieving activity. Specific for the corporate world as well as multinational companies, जो जिनके साथ मैं गरबा के मूवमेंट्स करवा के उनका स्ट्रेस दूर करने की ट्राई करूंगा. एंड that will be my PhD subject, right? So it's not only कि गरबा सिंपली हम नवरात्रि के दरमियान खेल रहे हैं, अपने 4 महीने पहले से क्लास में जाके ही खेल रहे हैं, but it can be helpful in so many aspects. जैसे आपने बताया, अगर साइकोलॉजिकल साइड देखने जाएंगे तो इट कैन बी हेल्पफुल इन
स्ट्रेस रिलीविंग और कंसंट्रेशन Yes. और पॉजिटिविटी, अगर फिटनेस लेवल को देखने के लिए जाएंगे, अगर फिजिकल फिटनेस को, तो इट कैन बी हेल्प इन मैनी वेज, लाइक हमारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारे मसल्स को एक्टिव करेंगे, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंड सो मैनी बेनिफिट वी डू हैव, but we have to apply it in an appropriate way so that we can get a maximum benefit of Garba. So we are thank you Amish bhai. Okay, so we are going towards the closing our session. Still, if you want to ask any question, we are here for the next 1 or 2 minutes to discuss about our next topic. So in between that, if you want to ask any question, please ask in a comment. So हमारे साथ कल जुड़ रहे हैं मिस निर्जा पारेख. She is a most senior dietitian in Surat and practicing since last 25 years. Fit Appetite करके उनका एक डाइट स्टूडियो है पार्ले पॉइंट के ऊपर, और क्लिनिकल डिसीज स्पेसिफिक न्यूट्रिशनिस्ट है वो. सो हमारे साथ वो कल जुड़ेंगे न्यूट्रिशन इम्पैक्ट व्हेन यू आर डूइंग योग गरबा. जैसे हम लोगों ने योग गरबा का जो प्रोग्राम बनाया है, उनके साथ आप कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करोगे, उस चीज को लेके हमारे साथ निर्जा मैम पारेख जुड़े रहेंगे कल के सेशन में at evening 6 p.m. on a same platform IAGD, Indian Academy of Garba and Odia. So it's not only for the Yoga Garba, but there is a yogas, asana, meditation, pranayam including our Yoga Garba and Garba as well. So ma'am will discuss about the both thing कि अगर आप योगा करते हो और गरबा करते हो या योग गरबा करते हो, तो what should be the basic nutrition plan for you. So we'll meet her tomorrow at 6 p.m. on a same platform. So we have one comment. So very interesting and enjoy a lot. Thanks, sir and ma'am. Thank you, Chaitali ma'am, for joining us in the session. Thank you. Thank you, Thank Kunal you. Kapadia, for joining us. As you said, Garba can help to relieve stress. Has it to be followed by regularly or only when we are in stress? Ma'am, if you can answer the question. It's, as I am doing promotion of our culture, I will say you can do Garba every day. But according to you, you can please explain the sir what he is asking about. Yes, yes. See, for anything that we do should be done long term. So definitely, I would like to say that Garba, not for forever, but at least for a long period of time until you are normal, back to your routine, back to yourself. At least तब तक आपको continue करनी चाहिए कोई भी activity हो. So even Garba, at least long term, थोड़े time के लिए you should definitely do. Because not only mental health benefits, it has other benefits as well जो आगे discuss हुए हैं. It has all the physical benefits as well. So why not make it a habit and a part of your routine? हाँ जी. That is the same thing I was going to tell him के it's not only for the stress, but अगर अपने body को भी fitness को भी maintain करना है, you can do Garba on that purpose, and you can get additional benefit of stress relieving with that. There are so many different way the Garba is helping you in curing your this kind of stress and all. तो जैसे मैम ने बताया कि आप रेगुलर भी कर सकते हो, बट द थिंग इज कि अगर स्ट्रेस के लिए स्पेसिफिक कर रहे हो, तो जब तक वो क्लियर नहीं होता है यू कैन डू. और रेगुलर अगर करना चाहते हो तो यू हैव टू चेंज योर एस्पेक्ट कि भाई मुझे फिटनेस के लिए करना है, मुझे वेट लॉस के लिए करना है, मुझे स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए करना है, मुझे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करना है. That can be the reason, and that you can focus on a particular thing, Amish bhai. So thank you, Vanisha Ben, for the joining. You are the most active member of my this session. आप मेरे session को share भी करते हो, पूरा attend भी करते हो. So thank you very much for joining me and support me for the wonderful cause. Hetal ma'am, thank you very much for joining me. Thank you everybody. Yeah, sure. Sir, you can visit my website. It's a www.iagd.in,
or else I will send you in a comment of her number, so it will be okay with you, right? So, guys, we are Yes, closing yes. our session now. Thank you very much for joining. Hope you guys enjoyed the session and hope you guys educate yourself regards the Garba and mental health. So, बस गरबा करो, enjoy करो, but with a technical and proper way that can help you to for your physical as well as mental fitness. Okay. Thank you very much, ma'am, for Thank you, giving your wonder. everybody. Thank you very much, ma'am, from the IAGD for giving your valuable time and sharing your this much interesting informations with our viewers. So we really thanks to you. Okay, and Thank you. Thank you. It's guys, my pleasure. Definitely. okay, and guys, see you tomorrow evening 6 a.m. 6 p.m. Sorry, by evening with Miss Nirja Parekh, who is going to tell about the diet process when you are doing yoga garba or any other fitness activity. So thank you again for joining us. Bye. Thank you. Bye bye.